This is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video I am going to explain The Merchant of Venice Act 2 Scene 2. Student, I will explain in English at first and then in Hindi. So, in both the languages you can understand the theme and conversations of this act. So students, let's start. At first in English. In Act 2 Scene 2, Lancelot thinks about his job, that he should leave the job or not, of his master, whom he assumed as a devil, Jew, or he should listen his conscience by heart, that it should be honest or loyal to the devil Jew, or he should leave the job. He is in dilemma to think about it, but finally he listens his devil friend's advice and decides to leave the job. Deciding to leave the job, he goes from there and meets his blind father, Gobbo. On his way, he asks about the Jew house. His blind father asked him about the Jew house and requests to show the way. But at first Lancelot misguides him, tells lie about himself to his father, Gobbo, and doesn't want to explain everything. And Gobbo, and again and again he used Master Lancelot. To hear these words, Master Lancelot, Gobbo dislike all this because he knows his son is simple and works in Jew house. Gobbo is himself an honest and normal person. So Lancelot cuts a joke that he is dead to his father, but his father blessed his son's soul because he has only son. After that, after some time, he tells him that he is his son. Lancelot tries to explain to his father Gobbo that he is his real son and who is talking with him, and tells Gobbo's wife's name, that is his mother's name, Marjorie. After hearing this word, after hearing the name of Marjorie, Gobbo believes that he is his real son. He dislikes his horse, and when Gobbo comes to know that Lancelot has already increased beards like horse, which his father doesn't like. After that, father and son they leave from that place, and his father also told to Lancelot that he has some gift for the Jews which he wants to give it to him, but Lancelot doesn't want to do any work, any kind of work for the Jews. He has already decided to leave that job and doesn't want to say anything, doesn't want to do for the Jews. So he stays longer than he would, because he expressed his feelings to his father that if he stays longer, then he would be also a Jew. So he doesn't want to be there. After all this conversation, father and son depart from there and they come to Bassanio. In front of Bassanio, Gobbo, his blind father, and Lancelot expresses everything to Bassanio, that he has already left the job. Now he was in quest of a job. Bassanio convinced with Gobbo and his words. After convincing with his father Gobbo, Bassanio tells Lancelot that I will give you the job, and orders his servant that please get ready some cloths, new cloths, and tells him to join. But before that, you go and clear everything from the Jews so that in future there won't be any problem. Although Bassanio knows that Shylock has sent Lancelot already, that he is just going to leave the job. Then Bassanio meets Gratiano, because Gratiano enters in this scene.
Then there is a conversation between Bassanio and Greciano after departing Lancelot and Gobbo. Bassanio meets Greciano, and before going to Belmont, he urged him, he warns him that you should get sort of your behavior, you should change your behavior and be a good person, because he doesn't want to show this kind of physical and mental thoughts be there when they go to Belmont, because the people lives in Belmont, they don't like all this. So if you want to go, Bassanio tells Greciano that if you want to go with me, if you want to accompany me, please get sort of your all inhuman activities and behavior. Greciano agrees, but Bassanio also tells him that today you just arrange a party. At night, this night is for you. You can enjoy whatever you wish. So here to hear all this, Greciano goes from there and enjoy the party. After this conversation, Act 2, Scene 2 ends. इन हिंदी स्टूडेंट्स लॉन्सलॉट जो है वो सीन 2 स्टार्ट होता है उसके कन्वर्सेशन से, उसके मन की धारणा से, जो वो मन में सोचता है। वो सोच कर रखा है कि वो जॉब को छोड़ देगा, जीव के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो परेशान हो चुका है जीव के अंदर काम करके। वो उसको डेविल के जैसा मानता है और एक डेविल के साथ वो काम नहीं करना चाहता है। वो उसके बिहेवियर से सेटिस्फाइड नहीं है। उसमें वो एक विशेष रूप से एक डायलिमा में फंसा हुआ है कि क्या वो ईमानदारी और लॉयल्टी को छोड़कर ज्यूस के जॉब को छोड़ देगा या अपने डेविल फ्रेंड्स यानी अपने मन की बात सुनेगा या डेविल फ्रेंड्स की बात सुनेगा। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे जॉब छोड़ देना चाहिए या ऑनेस्टी से या लॉयल्टी के साथ जैसा चला आ रहा है वैसा ही डेविल जीव के साथ उसका सर्वेंट बने रहने के लिए उत्तरदायी बने होगा। तो लॉन्सलॉट जो है वो कंफ्यूज है और खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। अपनी मन की बात सुननी चाहिए या फिर डेविल फ्रेंड्स की बात सुननी चाहिए। फाइनली वो डिसाइड करता है कि डेविल फ्रेंड्स की ही बात और सलाह अच्छी है और वो जॉब को छोड़ देना चाहता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होकर कहीं और वर्क करना चाहता है और ज्यूज़ के अंदर काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे वहाँ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। यह सोच करके वो वहाँ से डिपार्ट होता है। तब तक उसके ब्लाइंड फादर गोबो उसी वे से आते हैं, उनकी एंट्री होती है। वो पूछते हैं जीव के हाउस के बारे में उस पर्सन से, क्योंकि वो अंधे हैं, वो देख नहीं पाते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं, जीव के हाउस का एड्रेस पूछते हैं, पता पूछते हैं और रास्ता देखने के लिए लॉन्सलॉट से ही पूछते हैं। बट लॉन्सलॉट जो है वो थोड़े समय के लिए उन्हें मिसगाइड करता है, उनसे झूठ बोलता है, उन्हें इधर उधर का रास्ता बताता है और रास्ता इस तरह से पेचीदे तरीके से बताता है कि गोबो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट वो अपने सन के बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति है, वो मेरा बेटा है, वो लॉन्सलॉट नाम है। तो वो लॉन्सलॉट खुद उसे अपने पिता को मास्टर लॉन्सलॉट बार बार कहता है, जो गोबो को उतना पसंद नहीं आता है। वो कहता है कि वो कोई मास्टर नहीं बल्कि वो तो जीव के यहाँ काम करता है, नॉर्मल इंसान है, सिंपल है और जीव के घर पे काम करता है, ऑनेस्ट है। प्लीज़ मुझे लॉन्सलॉट का पता बता दीजिए, मैं उनसे मिलने चाहता हूँ, मैं जीव के लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। तो गोबो जो है वो लॉन्सलॉट की बात को सुनता है। लॉन्सलॉट फिर उससे मजाक करता है, मजाक में कहता है कि वो मर चुका है। फादर थोड़े उदास हो जाते हैं और अपने इकलौते बेटे के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं गॉड से। इसके बाद थोड़ी देर के बाद, कन्वर्सेशन के बाद, लॉन्सलॉट जो है वो उसको कहता है कि वही उसका बेटा है। बट इनिशियली गोबो इस पर विश्वास नहीं करता है। जब लॉन्सलॉट गोबो की पत्नी मर्चरी का नाम लेता है तो यह सुनकर के गोबो थोड़ा बिलीव करता है कि वही उसका वास्तविक बेटा है। पूरी संवाद कुछ देर चलने के बाद
गोबो के गोबो को लॉन्सलॉट के फिजिकल अपीयरेंस का पता चलता है कि उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है हॉर्स की जैसी। गोबो जो है को जो लॉन्सलॉट जो है जब ये विश्वास कर लेता है कि वही उसका बेटा है, तो लॉन्सलॉट जो है वो जीव के गिफ्ट को देने के लिए अपने पिता से कहता है कि मैं अभी जीव का कोई भी काम करना नहीं चाहता, ना ही उसके पास जाना चाहता हूँ, इसीलिए गिफ्ट देना के लिए मुझे प्रेस ना करें, दबाव ना डालें, और वो उस डेविल के लिए कोई गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं उस डेविल के पास बार बार जाऊं और डेविल के साथ बना रहूं तो एक दिन मैं भी डेविल बन जाऊंगा, शैतान बन जाऊंगा, क्योंकि मैं उस शैतान के पास और काम करना नहीं चाहता। वो जीव उसके साथ रहते रहते कहीं मैं भी जीव ना बन जाऊं, इसलिए मैं उसका काम छोड़ना चाहता हूं। इस तरह से गोबो अपने बेटे लॉन्सलॉट से सेटिस्फाई होता है और वहाँ से डिपार्ट होता है। डिपार्ट होने के बाद वो लोग नेक्स्ट सीन में बशानियों के पास आते हैं और जॉब की तलाश में आते हैं। बशानियों को ये पता रहता है कि लॉन्सलॉट जो है वो शालुक के पास, ज्यूस के पास से जॉब छोड़ चुका है और नए जॉब की तलाश में है। बट गोबो की ऑनेस्टी और नॉर्मलिटी के कारण वो उनसे कन्विंस होता है, उससे कई बातों का डिस्कशन करता है दोनों बाप बेटे से। आफ्टर दैट बशानियों ये कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें एक जॉब देता हूँ, और अपने नौकर को उसके अच्छे कपड़े और ड्रेस के लिए बोल भी देता है, और ये भी कहता है कि जाकर जीव से सारी चीज़ें क्लियर कर लो, कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर बशानियों के साथ थोड़ी देर बाद ग्रेशियानो की एंट्री होती है, क्योंकि लॉन्सलॉट और गोबो वहाँ से डिपार्ट करते हैं। ग्रेशियानो की इंटर होने पर बशानियों ग्रेशियानो को एक वार्निंग देता है बातचीत के दौरान कि अगर तुम मेरे साथ बेलमोंट जाना चाहते हो, जहाँ मुझे कैस्केट चूज़ करना है, पोर्शिया से शादी करनी है, तो तुम्हें बेलमोंट के नियम कानून के अनुसार वहाँ रहना होगा, ताकि कोई तुम्हारे कारण मेरा इंसल्ट ना हो, कोई मेरी हंसी ना उड़ाए, क्योंकि तुम बहुत ही निठल्ले किस्म के इंसान हो। हाँ, तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं है, तुम्हारी विचारधारा सही नहीं है, तुम्हारे चलने का ढंग, बोलने का ढंग अच्छा नहीं है, ठीक है, तुम जानवर की तरह बिहेव करते हो। सबसे पहले अपनी बिहेवियर और कैरेक्टर को सुधारो, अपने इस आचरण में सुधार लाओ, ताकि बेलमोंट के लोग तुम्हारे साथ साथ मेरी भी तारीफ़ करें और किसी प्रकार की शिकायत ना करें। इतना समझाने के बाद वो वार्निंग देता है कि अगर जाना चाहते हो तो इन सभी बातों को तुम्हें मानना होगा। ग्रेशियानो अल्हड़ टाइप का इंसान था। ग्रेशियानो बोलता है ठीक है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा फॉलो करूँगा, अर्ज करता है। फिर बोला कि ठीक है, अगर तुम अग्री हो तो आज जो पार्टी है, पार्टी का अरेंजमेंट करो, आज की रात तुम्हारी रात है, तुम अपनी अल्हड़पन से अपनी पार्टी को एंजॉय कर सकते हो। इस तरह से दोनों का कन्वर्सेशन समाप्त होता है और ग्रेशियानो जो है पार्टी की ओर चला जाता है और एक्ट का एंड हो जाता है। आई होप स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो and audio you can understand all these terms, so that when you have to write question answers, then in your own words you can write. Watch and listen this video again and again. Of course you can understand everything. Thanks for watching.